Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, beta, today again I am explaining the same chapter which I taught you in previous classes, that is federalism. So, bache, in a simple term, I told you the meaning of federalism. Federalism is a system of government where power is shared among various level of government. But in previous chapter in power sharing, we come to know that how and why power sharing is desirable and important for a country. We have seen the example of Sri Lanka as well as the Belgium. In that comparison between two countries, we came to know about that if a country government, yes, influenced by any majority of a country, definitely there will be partiality, and the rest people who are living in that country will feel the, you can say, feeling of alienation, which the Tamil also felt in Sri Lanka. So in that chapter I also told you meaning of power sharing, that in how many terms, in how many levels the power is shared among the government. So first let me tell you, there are, one is level of government, you know this thing. Second is organ of a government. So this so level of government, there is three level. Earlier it was two. The first level is known as bache central. Second is state. But in this chapter beta, you will come to know about one more level of the government, that is local level, which was implemented after the amendment of 1992. Okay, so here it is written. See, in previous chapter we noted there is two type of division in power sharing, vertical and horizontal. Verticals mean when power is shared amongst the level means center, state and local government. Second, horizontal distribution of power bache, where power is shared amongst legislature, executive and judiciary. Okay, you know this thing. Okay, so here in this chapter we focus on the form of power sharing. It is mostly commonly as well as known as फेडरलिज्म. यानी ये चैप्टर आपको क्या बताएगा, यहाँ हम क्या एक जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जैसे सेंटर और स्टेट, इनके बीच में कैसे पावर शेयरिंग होता है, क्या फॉर्म्स होते हैं शेयरिंग करने की पावर, इसके बारे में पढ़ेंगे. और इसी चीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो we begin by describing federalism in a general term. The rest of the chapter tries to understand the theory and practical of federalism in India. यानी सबसे पहले हम इस टर्म की डेफिनेशन समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है. आगे आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे बेटा, तो आपको समझ आएगा कि किसी भी कंट्री में कैसे फेडरलिज्म सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है. और हम ये भी देखेंगे क्यों फेडरलिज्म बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. और हम कुछ एग्जाम्पल इंडिया के भी समझेंगे और ये समझेंगे कैसे इंडिया को फेडरलिस्ट कंट्री कहा जाता है. ओके ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर बेटा वी नो अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड द थर्ड टियर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा वहीं पे आपको एक थर्ड लेवल की जो टियर्स गवर्नमेंट है, जिससे मैंने बोला लोकल गवर्नमेंट, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा क्या होती है लोकल गवर्नमेंट और क्यों इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया. तो चलिए हम चैप्टर को बिगनिंग करते हैं. सबसे पहले बेटा हम समझेंगे मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. सो जैसे कि मैंने बहुत बार आपको बता दिया है बेटा, फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between central authority and various constituent unit of a country. बच्चे, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे जो हमारे लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, बेशक सेंट्रल होता है, कहीं स्टेट होता है, कहीं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, यानी जहाँ पर पावर की शेयरिंग होती है डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो. मींस जिस भी कंट्री में पावर की शेयर होता है या जहाँ पे दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, वही कंट्री हम क्या कहते हैं, दैट कंट्री इज़ नोन एज फेडरलिस्ट कंट्री. सो पहला फीचर हम जब आगे पढ़ेंगे आपको ये इम्पॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा कि फेडरलिज्म कंट्री कौन सी कंट्री मानी जाएगी. बेटा ऐसी कंट्री मानी जाएगी जहाँ पे क्या होता है, कम से कम दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, जहाँ पे इक्वल क्या हो, शेयरिंग हो पावर की. क्यों ज़रूरी है,
क्योंकि बेटा आप जानते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हमारी है जहाँ पे क्या सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे चाइना इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट, जहाँ सिंगल टाइप की गवर्नमेंट होती है और वहाँ आप देखते हैं जो रूल्स वगैरह गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं वो सिंगल पार्टी या सिंगल पर्सन या सिंगल पर्सन के ओपिनियन के अकॉर्डिंग बने जाते हैं। वहाँ किसी अगर वो जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉस है उसमें कोई खामियां भी होती है या उसके एग्री भी नहीं होते हैं कुछ यू कैन से सम पीपल ऑफ द कंट्री और सम अदर you can say people, so there is no chance to change that law because in these type of country power is in the one hand and this जो central level की government होती है all the power is enjoyed by them and they have free to make the laws as they wish. सो इसीलिए हम पहला फीचर जो हम पढ़ेंगे आगे फेडरलिज्म का ये होना चाहिए कि फेडरलिस्ट कंट्री बेटा हम उस कंट्री को मानेंगे जहाँ पे क्या होता है दो या दो से अधिक टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी लेवल्स, टीयर्स मीन्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, जहाँ हर किसी के पास इंडिविजुअली चांस हो।